So welcome to preposition part 3. So as we discussed that we will have 4 sessions in preposition and we have already completed part 1 and part 2 and today is our part 3. So guys, let's welcome and please you keep yourself mute so that you can go with this training without any interruption. Okay, keep your audio mute. Okay guys, so we have been talking about different prepositions. As we know that prepositions are very important. Prepositions बहुत important होते हैं और बहुत confusion होता है preposition में. Okay, so how can we go ahead with preposition? Today we will know about it. So guys, one by one, we'll talk about different prepositions. So today our first preposition is, and today we'll be learning 15 prepositions. Today we are going to learn 15 prepositions. You know, there are many prepositions and we have to be very expert into prepositions because most of the people, they do mistake either in the verb or in the preposition. लोग जो ज्यादा गलतियां करते हैं ना वो या तो वर्ब में ज्यादा करते हैं या तो prepositions में गलती करते हैं. इन के जगह at लगाते हैं, from के जगह for लगाते हैं. So शायद ये सेशन आपके लिए helping होगा. So here are our 15 such prepositions. So let's start with today's preposition. The first one is of. Of. We have seen this preposition many times. Of. इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है का और की. okay? हिंदी में हम लोग जब भी बोलते हैं का और की तो उसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है ऑफ. जब सेंटेंस आप देखोगे तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ऑफ. He is the brother of Ram. वो राम का भाई है. तो राम का सो इसीलिए मैंने बोला हिंदी में इसको का और की जो हम लोग बोलते हैं उसमें हम लोग ऑफ लगाते हैं. He is the brother of Ram. She is the sister of 3 brothers. The chair is of that shop. ये जो chair है वो उस दुकान का है. So we can use of in this way. कभी भी किसी को कोई भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आए ना तो आप मुझे स्टॉप कर. So these are the example of preposition. Is there any question, guys? It's very easy. No. I think you guys all know that. So off. Hello, sir. Yes. Sir, my network is poor, so my video is off. Sometimes I confuse between off and to. Sir, We have already done 2, right? yes, sir. Okay. So first complete all that prepositions and then you can differentiate between that. Okay, You sir. want to give any example between off and to where you are confused? Now I don't remember. I will tell you after. Okay, fine. सर Yeah. सर इसका प्लेस हमेशा कहीं भी अपन फिट कर सकते हैं क्या? द चेयर इज ऑफ और ही इज द सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर. वो हाँ, यहाँ पे जैसे हम लोग ये सेंटेंस लिखे हैं आप प्लेस को चेंज मतलब यहाँ पे कोई प्लेस बोल के नहीं होता है. यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ही इज द ब्रदर ऑफ राम. ये राम का भाई है तो राम का है तो इसलिए राम के पहले ऑफ लगा है. वो 3 ब्रदर्स का सिस्टर है तो इसीलिए 3 ब्रदर्स के पहले ऑफ लगा है. वो उस दुकान का चेयर है तो वो दुकान दैट शॉप के पहले ऑफ लगा है. तो कोई भी चीज का जब होगा तो उस चीज के पहले ऑफ लगेगा. ओके
So let's go to the next one. About. About. इसको हिंदी में अगर हम लोग बोले के बारे में, के बारे में, इसको जब हम लोग देखेंगे सेंटेंस तो आप लोग को और ज्यादा समझ में आएगा, क्लैरिटी हो गया. He is talking about me. He is talking about me. वो मेरे बारे में बात कर रहा है. Papa knows about her. Don't talk about him. तो about him, about her माने उसके बारे में. So we can use about in this way. These are very easy. I believe यहाँ पे आप लोग जो भी हो, maximum लोग काफी easily relate कर सकते हो ये sentence से. We use these sentences. लेकिन If we have a sentence like he is irregular about attending the classes. absolutely, वो कुछ भी हो So, सकता है. हाँ, तो यहाँ पर वो के लिए तो नहीं हुआ. यहाँ के पे बारे में, see, वो यहाँ पे क्लासेस के बारे में अटेंडेंस के बारे में वो सीरियस नहीं है. आप उसको एक असल में हिंदी और इंग्लिश को आप इतना ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप ने जो सेंटेंस बोला वहां पे भी आप अबाउट लगा सकते हो. वो अटेंडेंस के बारे में सीरियस नहीं है या आपका अटेंडेंस के लिए सीरियस नहीं है, उसको आप कैसे भी बोल सकते हो. लेकिन नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस हमने यूज किया है, इसीलिए यहाँ पे हिंदी में आप यहाँ पे हिंदी पे फोकस मत करो, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इसलिए मैंने दिया है ताकि लोग थोड़ा सा इस चीज को रिलेट कर पाए हिंदी के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे के बारे में लिखा है. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो आप बोल रहे हो वो सही नहीं है. दैट इज ऑल्सो राइट. Sir, sometimes we use what about you. Is this sentence correct? Yes, absolutely. That is Sir, a different. That is a different function of about. Okay. That is a different. देखो ऐसा बात नहीं है कि about को आप इसको छोड़ के आप कहीं और यूज नहीं कर सकते. ये एक एप्लीकेशन है about का, जो एप्लीकेशन अभी आपके सामने है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसके और कोई दूसरे एप्लीकेशंस नहीं है. सर हेलो. Yes. सर मैंने एक सेंटेंस देखा था, the rain is about to come. Absolutely. आप सही हो. Absolutely right. यहाँ पे about को डिफरेंट वे से प्लेस किया गया है. तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये जो prepositions है इसके काफी इजी एप्लीकेशंस को देख रहे हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं. We are not going into advance. We have just started it so that everyone they can understand. आप लोग एक्स्ट्रा मत किसी सेंटेंस को अभी ऐड करो. अभी हम लोग जो एक एक करके जा रहे हैं, हो सकता है कि जो सेंटेंस आप खोज रहे हो आपको वो सेंटेंस में मिल जाए. सो अबाउट का जो ये फंक्शन है, अबाउट के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फंक्शन है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन. ओके, लेट्स गो अहेड, नहीं तो वी कांट फिनिश इट ऑफ. अगो, sometimes we use this preposition, we call it ago. You know, in Hindi we say समय पहले, कुछ समय पहले. So जैसे सेंटेंस होता है सर अगो अबाउट, सर अगो और अबाउट, यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है. Okay, sorry, यहाँ पे ago होगा. Absolutely right. Okay guys, yeah, ago means कुछ समय पहले. I was here 2 years ago. I was here 2 years ago. Papa had come 4 days ago. समय पहले, 4 दिन पहले, 2 साल पहले. He won the award 36 years ago. So whenever we talk about these kind of applications, कुछ समय पहले वो यहाँ थे. You know, he was here few minutes ago. हम लोग बोलते हैं कभी कभी वो कुछ मिनट पहले यहाँ थे, अभी निकल गए. He was just, you know, he was here for
for 2 minutes ago, you know, he was here 2 minutes ago. So वहां पे जब हम बोलते हैं कि कुछ समय पहले, तो वहां पे आप ago को यूज कर सकते हो. See, we are talking about a very, I would say very primary and preliminary uses of these prepositions. But इसके advanced uses भी हैं, लेकिन but we are starting with a very low level so that everybody can understand the primary application of these prepositions. Okay. Inside, outside. These are some of the prepositions you have seen. Excuse me, sir. Inside, outside. Yes. I'm sorry to interrupting you. Just I want to clear about the ago and before. The before means also the pehle, and ago means is also pehle. So right Can now you we clear are the we have talked about ago. When we will be talk about we'll be talking about before, तब हम लोग उस पे बात करेंगे. ठीक है? Correct. Right. वन बाय वन हम लोग जाएंगे, किसी दूसरे prepositions को नहीं लाएंगे, हम लोग एक एक करके सारे prepositions को देखेंगे. बस आप लोग नोट करते रहना कि हम लोग क्या क्या prepositions को cater कर रहे हैं यहाँ पे वन बाय वन. Understood. Thank you. Okay. So yes, this time we are seeing inside and outside. So in हिंदी अगर मैं बोलूँ, कोई enclosed structure है, कोई बंद structure है, वो घर भी हो सकता है, वो एक कैंपस भी हो सकता है. एक बंद है, एक कैंपस है, एक स्ट्रक्चर है जो बंद है, एक बाउंड्री के अंदर है. ठीक है, तो वो है इनसाइड. मतलब वो है एक बंद आकृति या कोई स्ट्रक्चर है या कोई कैंपस है, उसके अंदर होगा तो इनसाइड, उसके बाहर होगा तो आउटसाइड. ये सबको पता है, इनसाइड एंड आउटसाइड. उसको अगर मैं सेंटेंस में यूज करूंगा तो सेंटेंस कैसे होंगे? He looked inside the house. He looked inside the house. मतलब बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था, बट उसने शायद झांका होगा और अंदर में देखा होगा. He looked inside the house. I was outside the house. I was outside the house. I was inside the house. So these are some of the prepositions which are very easy, and we have been using these prepositions in our daily conversations with people. But I just wanted to share you with all the prepositions so that आप अगर इसको use करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो इसको कर सकते हो. Inside and outside, कोई बंद structure के outside या inside. He looked inside the house. I was outside the house. I was inside the house. He was standing outside. Outside मतलब वो शायद कैंपस के बाहर खड़ा होगा या घर के बाहर. He was standing outside. What is inside the computer? तो कंप्यूटर भी एक बंद सा चीज है. अब उसके अंदर क्या है? What is inside the computer? तो यहाँ भी हम लोग inside का यूज करते हैं. What is inside the computer? These are very, yeah. ये इन भी जब हम यूज करते हैं ना, इन प्रिपोजिशन. In? हाँ, जैसे आई एम सिटिंग इन द हाउस. In the, अच्छा I am देखो, in the house मतलब मैं घर पर हूँ, और inside बने मैं घर के अंदर हूँ. हाँ, तो सर दोनों लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली. आप अभी टू द पॉइंट आप क्या बोलना चाहते हो उसके ऊपर. आप अगर किसी को बोलना चाहते हो मैं घर के अंदर हूँ या मैं घर पर हूँ, तो आप आई एम इन द हाउस राइट नाउ और आई एम इनसाइड द हाउस राइट नाउ. दोनों का यूज एक नहीं होगा. सर व्हाट इज इन द कंप्यूटर भी तो लिख सकते हैं. व्हाट इज इन द कंप्यूटर, एब्सोल्युटली राइट. लेकिन दोनों का मतलब एक नहीं है. आप इनसाइड और इन दोनों का मतलब एक नहीं है. आप किसी को अपने, मेरे को मेरे पापा ने फोन किया, मैंने बोला पापा मैं अभी घर के अंदर हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ कि मुझे पता हो कि बाहर क्या चल रहा है, मैं अभी घर के अंदर हूँ. तो अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा पापा आई एम इनसाइड होम, आई एम नॉट आउटसाइड द हाउस, सो दैट आई कैन सी कि क्या चल रहा है बाहर में. तो इन हाउस और इनसाइड हाउस में थोड़ा एप्लीकेशन में थोड़ा सा चेंजेस होता है. मतलब ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेम है,
बट आप क्या बोलना चाहते हो वहां पे आप इन लगाते हो, कभी कभी इनसाइड लगाते हो। इट डिपेंड्स कि आप बोलना क्या चाहते हो। कभी हम लोग बोलना चाहते हैं कि मैं अभी घर के अंदर हूँ, और कभी हम लोग बोलना चाहते हैं मैं घर पर हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू से, बट जी बोथ आर राइट, बट बोथ आर राइट। इन भी राइट है, इनसाइड भी राइट है। आप क्या बोलना चाहते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। शी इज आउटसाइड स्कूल्स प्रेमाइसेस, वो स्कूल के प्रेमाइसेस के आउटसाइड में है। शी इज आउटसाइड स्कूल्स प्रेमाइसेस। ओके, within. Now the next is within. Within को हम लोग यूज कर सकते हैं बहुत सारे जगह, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं वो है अंडर द टाइम गैप। एक टाइम गैप की बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप दूसरे एग्जांपल्स को मत लाना यहाँ पे। अभी हम लोग within को यूज कर रहे हैं अंडर द टाइम गैप। एक टाइम गैप के अंदर जब कोई चीज होता है। I will come within 5 minutes. I will come within 5 minutes. मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। एक टाइम का गैप दिखा रहा हूँ, एक रेंज दे रहा हूँ टाइम का, उस टाइम के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। सर, इस सेंटेंस में अगर सिर्फ इन लगाएं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। I'll come in 5 minutes नहीं, In एकदम 5 नहीं minutes. होगा। दोनों का अच्छा। मतलब ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आप बोलना क्या चाहते हो। मैं 10 मिनट में आऊंगा, मैं 10 मिनट के अंदर आऊंगा, दोनों हिंदी में में आप बात तो बट एक सर बात रेंज तो दे रहे हो। मैं 10 मिनट में आऊंगा या मैं 10 मिनट के अंदर आऊंगा, बात तो एक ही हुई है हिंदी में तो। एब्सोल्युटली सेम है, एब्सोल्युटली सेम। लेकिन यहाँ पे हम इन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम विद इन की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रीपोजिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके एप्लीकेशंस के बारे में ही बात करेंगे। हम इस जगह पे कुछ और लगा सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो हम विद इन की बात कर रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो टू द पॉइंट में होना चाहिए। ये हम लोग एक वर्ड को बहुत जगह यूज कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन विद इन। सो आप फोकस अभी विद इन पे ही रखिए। आप ये देखिए कि आप ये सेंटेंस यूज करते हो कि नहीं। आप जो सोच रहे हो इन 5 मिनट्स, दैट इज राइट, बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन, वी आर टॉकिंग अबाउट विद इन। जी सर, गॉट इट। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट द पर्टिकुलर प्रपोजिशन व्हाट वी आर डूइंग, ताकि कंफ्यूज ना हो, राइट। ओके, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। 5 minutes. Ram will reach within 10 minutes. These are very easy sentences and we normally speak. He is coming within 2 days. वो 2 दिन के अंदर आ जाएगा। मतलब 2 दिन के अंदर, मतलब कभी भी 1 दिन में भी आ सकता है। वो जब मैं बोल रहा हूँ तब भी आ सकता है। वो 2 दिन के अंदर बोला है, आ जाएगा। So he is coming within 2 days. ये सिर्फ फ्यूचर टेंस में ही लगेगा सर? He will come. हाँ, तो फ्यूचर में भी लगेगा। सिर्फ फ्यूचर का ही आप एग्जांपल दिए हैं, जैसे वो पूछ रही हूँ मैं। नहीं, यहाँ पे दिया हूँ, लेकिन ये आप पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। आप इसको पास्ट में यूज कर सकते हो, या ही केम विद इन 5 मिनट्स। वो मेरे पास प्रेजेंट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है सर। आई एम कमिंग विद इन 5 minutes. यार वो है ही तो लिखा, प्रेजेंट में तो है ही। ये सारे देखिए, एक प्रेजेंट में है, एक फ्यूचर में है, 2 फ्यूचर में है। यहाँ पे पास्ट में भी हो सकता है। वो 5 मिनट के अंदर। I finished that homework within 2 days. यस, वो पास्ट में भी। यहाँ पे मैंने कोई टेंस को दिमाग में रखते हुए नहीं किया है, यहाँ पे एग्जांपल्स को मैंने लिखा है। लेकिन हाँ, आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, डेफिनेटली। सो हाँ, ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों में हो सकता है। आप सोचिए ना, आप ऐसे सेंटेंस कब बोलते हो, वही आंसर है आपका। ओके, तो अभी जो है वो है विदाउट। विदाउट के बिना, कोई चीज के बिना। लिविंग समथिंग और समवन। विदाउट, किसी चीज के बिना। आई एम नथिंग विदाउट यू। आई एम नथिंग विदाउट यू। राम विल नॉट गो विदाउट मी। वो मेरे बिना नहीं जाएगा। वी आर अलोन विदाउट हिम। हम लोग काफी अकेले हैं उनके बिना। सो
विदाउट का यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग किसी चीज के बिना हम बोलना चाहते हैं कोई सेंटेंस को, वहां पे हम विदाउट का यूज कर सकते हैं। विदाउट, आई बिलीव कि अगर आप लिख रहे हो इस चीज को, ऑल्दो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, बट फिर भी इट्स गुड दैट यू राइट इट डाउन सो दैट आपके दिमाग में रहे, क्योंकि आपको एक टास्क दिया जाएगा। आज जब ये क्लास खत्म होगा, आप लोग सबको एक टास्क दिया जाएगा, और वो टास्क को आपको आज या तो 1-2 दिन के अंदर करके मुझे भेजने होंगे। सबको बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। कुछ लोग टाइम का यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि टाइम लिमिटेड है, तो सबको मैं अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता हूँ। सो आई विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। आप लोग अपना वीडियो या ऑडियो में आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या टास्क होगा वो मैं आज के लेसन के बाद बोलूंगा। बी रेडी। लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद। आफ्टर, ये these I think these we already use it. आफ्टर मतलब के बाद, कोई चीज के बाद। The train will reach after time. टाइम के बाद आएगा। He will come after you leave. तुम जब यहाँ से जाओगे तब वो आएगा, या मैं आऊंगा। I will come after you leave. After. He met Rahul after 10. वो 10 के बाद राहुल से मिला। वो 10 बजे हो सकता है या 10 साल भी हो सकता है, 10 years. So it depends. So यहाँ पे आफ्टर का मतलब है Sir, कि to come. yes, Sir, to come after one. to come after one. You are talking about what? अच्छा अच्छा, आप एग्जांपल दे रहे हो, टू कम्स आफ्टर वन। हाँ, हो सकता है, absolutely हो सकता है। मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। हो सकता है, एकदम हो सकता है, डेफिनेटली हो Sir, सकता है। हाँ, I will do it after. This type of sentence is incorrect. I'll do it Means it is. after. After what? After पूरा Af- कंप्लीट कीजिए सेंटेंस को। Oh, okay, okay. I will do Okay, it sir. after. Yes, sir. हमारे after sometimes. After some time. हाँ, तो ठीक है ना, all sentences are right, absolutely right. I'll do it after some time. मैं कुछ देर बाद बोलूंगा, या अब मैं Yes, yes, sir. करूंगा। यस सर, हमारे बच्चों को होमवर्क मिलता है व्हाट कम्स आफ्टर 10, व्हाट कम्स आफ्टर 12। सर Yes, he met with Rahul after 10 हो सकता है ये? absolutely. ये तो Yes. एग्जांपल दिए हैं। हाँ, Sir, is it correct? After Don't very come after me. yes. What was your sentence? Don't come after me. वो एक अलग एप्लीकेशन हो गया। I'll हाँ, come to मतलब वो that. किस तरह से, मतलब I'll मेरे come पीछे to that. मत I'll आओ। come to that. आपकी वॉइस बहुत आस्ते आ रही है, बट आ रही है, थोड़ी आ रही है, बट ओके, I'll come to that. यहाँ पे देखो, आफ्टर जो आपने एग्जांपल लिया वही आफ्टर है। ये इसका एप्लीकेशन है किसी चीज के पीछे पड़ना, किसी चीज के पीछे पड़ना। सेंटेंस देखो, ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल। तो आफ्टर का यूज किसी पीछे पड़ना भी हो सकता है। ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल, वो गर्ल के पीछे पड़ा था। सो ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल। अब ये बहुत अच्छा वर्ड है, आफ्टर का यूज है। ऐसे यूज आप लोग भी कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर अभी इस सेंटेंस पहली बार सुना है सर। हाँ, ये सेंटेंस पहली बार सुना। ये बिल्कुल very common है। दैट गर्ल। He sit after me. It is very common. इट्स ओके। सी, जहाँ पे कॉमन एंड ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग के लिए ये कॉमन हो सकता है, कुछ लोग के लिए ये लेकिन नॉर्मल। मैंने यूज नहीं किया सर, मैंने यूज नहीं किया आज तक। हाँ, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे हमारे हर लेवल के लोग हैं। सो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो ही वाज आफ्टर दैट गर्ल। द पुलिस इज आफ्टर द थीफ। तो हम लोग आफ्टर को ऐसे भी यूज कर सकते हैं।
अच्छी बात है, आज कुछ आप पहली बार सीख रहे हो, कोई चीज पहली बार सीखने का भी मजा अलग होता है। द पुलिस इज आफ्टर द थीफ, मीनिंग सर क्लियर ये होना। बिहाइंड नहीं आ सकता इसके पीछे? द हाँ? पुलिस इज बिहाइंड द थीफ। अरे वो मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे मीनिंग देखो, पीछे पड़ना। अच्छा, पुलिस पीछे पड़ना है। हाँ चोर के पीछे पड़ा हुआ था या पड़ा है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो देखो, आफ्टर का यूज हो रहा है पीछे पड़ने के लिए। जी तो पुलिस इज आफ्टर द थीफ, पुलिस एकदम चोर के पीछे पड़ा हुआ है, ये बोलना चाह रहा है। आई एम आफ्टर डैड, मैं डैड के पीछे पड़ा हुआ हूँ, कुछ काम है मुझे शायद। आई एम आफ्टर डैड। सर आई एम आफ्टर इंग्लिश आ सकता है? मैं इंग्लिश के पीछे पड़ा हूँ। एकदम आ सकता है, एकदम आ सकता है। आई एम आफ्टर इंग्लिश। सर ही सिट आफ्टर मी, दैट दिस वन, मतलब वो मेरे पीछे बैठा था या पीछे होगा तो बिहाइंड, वो एक अलग एप्लीकेशन हो जाएगा। पीछे वो एक अलग है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर, पीछे पढ़ना। तो आपका जो नो सर वो मेरे बाद बैठा, वो मेरे बाद आकर के बैठा। हाँ के बाद में, तो कहाँ ही बैठा? सिट आफ्टर मी, मेरे पीछे बाद में आके बैठा। आपका तो आपका ही से आपका आंसर मिल जाएगा। हम लोग आ रहे हैं उस प्रपोजिशन पे आ रहे हैं, लेकिन ये प्रपोजिशन टोटली अलग है। यहाँ पे दो हमने देखा हमारे बाद, आफ्टर। तो आफ्टर एक एप्लीकेशन है कि बाद, मेरे बाद आया या मेरे, और एक हमने बात किया कि पीछे पड़ना। आपका जो है, मैं एक सेंटेंस किसी ने बोला आई एम आफ्टर इंग्लिश, सो इज इट करेक्ट और वी हैव टू यूज इट इन अ वे दैट आई एम आफ्टर लर्निंग इंग्लिश? व्हिच वन इज आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। आप बोलो आई एम आफ्टर इंग्लिश और आई एम आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, बोथ आर सेम। आप क्या बोलना चाहते हो? मैं इंग्लिश सीखने के पीछे पड़ा हुआ हूँ कि मैं इंग्लिश के पीछे पड़ा हुआ हूँ? तो दोनों राइट है, बोथ आर राइट। सर द कोरोना वायरस इज आफ्टर द वर्ल्ड, हो सकता है? पूरे विश्व के पीछे पड़ा कोरोना। आप सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, हो सकता है। वी आर ऑल्सो आफ्टर कोरोना, ताकि कोरोना को निकाल सके। वी आर ऑल्सो आफ्टर वी आर ऑल्सो आफ्टर इसको क्या बोलेंगे, हम लोग भी पीछे पड़े हुए हैं कोरोना के वैक्सीन को बनाने के लिए। वी आर ऑल्सो आफ्टर preparing the vaccine. Yes. Yeah, treating corona. तो एब्सोल्युटली कोई चीज के पीछे पड़ने को आप यूज कर सकते हैं। ओके चलिए, अभी एक नया आया है बिफोर। अब आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। या एक आंसर हमारे दीपिका जी ने कहा है, यू लुक आफ्टर मी। वेरी गुड सेंटेंस, यू लुक आफ्टर मी। आप आओ। ओके, यहाँ पे बिफोर है, बिफोर मतलब पहले। द ट्रेन विल रिच बिफोर टाइम, आई विल कम बिफोर यू लीव, ही लेफ्ट बिफोर हिज मॉम। मतलब कोई चीज या किसी के पहले। तो बिफोर का यूज आप पहले भी कर सकते हो। So can you clear here the before and about the ago? Ago and before, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहाँ पे समय, कुछ समय पहले, यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन थोड़ा सा ही डिफरेंट है। दो आई वॉज हियर बिफोर 2 years, ऐसे भी बोल सकते हो। आई वॉज हियर बिफोर 2 years, मैं दो साल के पहले यहाँ पे था। या आप ऐसे भी बोल सकते हो आई वॉज हियर 2 years ago। सो बोथ आर राइट। I was here before 2 years. That is also right. I was here 2 years ago. That is also right. Now you have to decide आप कैसे बोलोगे। So meaning is almost same. Excuse me, sir. Ego always used in the end of the sentence. Ago. Ago, वही हम सोचे ईगो भी पढ़ाई किया क्या? Sorry, sir. Yes, absolutely. ये जो सेंटेंस है यहाँ पे तो ago होगा। Yes, before. These are very easy. Okay. अब देखिए, बिफोर मतलब सामने भी होता है।
ठीक है, याद रखना एक चीज, बिफोर मतलब सामने, एकदम सामने, मेरे सामने। He was standing in front of me जैसे होता है ना, वो मेरे सामने खड़ा था। He was standing in front of me। तो यहाँ जो in front है, इसके जगह हम लोग before लगा सकते हैं। Standing before me। Yes, he was standing before me, मतलब वो सामने। इन फ्रंट के जगह भी आप बिफोर लगा सकते हैं। अगेंस्ट नहीं हो सकता सर, अगेंस्ट मी। अगेंस्ट मी का तो मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट चला गया ना, मतलब मेरे विरुद्ध खड़ा था वो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे वो सर हम meaning- दीवार के सहारे खड़ा था तो अगेंस्ट का यूज करते हाँ, हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे बिफोर की बात कर रहे हैं। तो अगेंस्ट जब हम लोग करेंगे तब हम लोग अगेंस्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे बिफोर है तो हम लोग बिफोर पे थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि वी कैन लर्न दिस मच बेटर वे। जी सर। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी के जगह बिफोर मी आप यूज कर सकते। He can't stand in front of me, वो मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता, तो आप वहां पे बोल सकते हो he can't stand before me। सर बिफोर का मतलब जैसे हिंदी में पहले होता है ना, पहले। वो तो एक कई बार एप्लीकेशन हाँ नहीं, वो कई बार जैसे ये जो आप सेंटेंस बता रहे हैं ना, वैसे इंग्लिश की बुक्स में या स्टोरी बुक्स में ऐसे आता है। तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन होता था मुझे कि ये बिफोर क्यों यूज किया, क्योंकि बिफोर का मतलब तो पहले हो गया, फिर ये यहाँ क्या कहना चाहता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये हो सकता है कि सर टीवी इज बिफोर मी, मेरे सामने है। आज सर ने क्लियर कर दिया। हाँ, दैट इज, आप कोई भी चीज जो आपके इन फ्रंट में है वहां पे आप वहां पे बिफोर लगा सकते हो। ओके ओके सर यस, हाँ, इन फ्रंट ऑफ, यहाँ तो हम ऑफ लगा रहे हैं, बिफोर मी, इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ बिफोर नहीं होगा, इन फ्रंट होगा तो ऑफ लगेगा, इन फ्रंट नहीं लगाओगे तो ऑफ नहीं आएगा, वो बिफोर लगाने से हो जाएगा। ओके हेलो, यहाँ पे इन फ्रंट इज ऑल्सो प्रपोजिशन, ऑफ इज ऑल्सो प्रपोजिशन। यस Sir, is it used with human beings only, or we can use before? Means that dog is standing before me, or that table is एब्सोल्युटली, here एब्सोल्युटली before यू आर me. राइट। ये जो बिफोर हम लोग लगा रहे हैं ना, एक मिनट, नॉर्मली ये जो बिफोर हम लोग लगा रहे हैं, दिस वी नॉर्मली यूज फॉर एनी पर्सन हु इज बिफोर मी। हम लोग नॉर्मली नहीं बोलेंगे कि मेरा बस सामने है तो बस इज बिफोर मी। इट्स नॉर्मली वी डोंट यूज इट, लेकिन अगर आप यूज करोगे तो वो ग्रामेटिकली गलत नहीं है। लेकिन ये जो बिफोर हम लोग यूज कर रहे हैं वो नॉर्मली हम लोग एक इंसान के लिए ज्यादा यूज करते हैं। ओके Okay, sir. इवन हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, तो वहां पे भी हम लोग कभी कभी हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि आई एम नियर, आई एम स्टैंडिंग बिफोर द बिल्डिंग। सो वी कैन यूज इट, इट्स नॉट कि वी कांट यूज इट, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको इंसान के सामने खड़े होने में हम लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं। लेकिन आप इसको कोई मटेरियलिस्टिक लोगों के, चीजों के सामने हो तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। Okay, next to. This is also one of the prepositions. Next to, बगल में, बगल में, मेरे बगल में या उसके बगल में। Next to. He is sitting next to Ram. वो राम के बगल में बैठा हुआ है। Papa is standing next to Ayansh. पापा जो है वो अयांश के बगल में खड़ा हुआ है।
सो नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है जो ऑलमोस्ट सेम है, वो है एडजेसेंट। सर वो नेक्स्ट टू को क्या हम कुछ किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं? Yes, yes, you can do it. I'm next to that big market. You can use it. कोई चीज के बगल में, कोई इंसान के बगल में, कोई जगह के बगल में, so you can use it. तो एडजेसेंट उसी का पार्ट है क्या नेक्स्ट टू का? Next ये to अलग से है नहीं, next to preposition? का जो मतलब है adjacent का वही मतलब है। ओके The both meanings are absolutely same. Adjacent मतलब भी बगल में। तो जहां पे आप next to लगा रहे हो वहां पे adjacent भी लगा सकते हो। He is sitting adjacent Ram. वहां पे next to लगता है, यहाँ पे to नहीं लगेगा। He is sitting adjacent Ram. Rashmi is standing adjacent Ram. Adjacent to नहीं, adjacent Ram. हाँ, बिसाइड भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे एडजेसेंट का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे, लेकिन बिसाइड भी हो सकता है एब्सोल्युटली। लेकिन राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द प्रीपोजिशन एडजेसेंट। Okay, sir. There is no difference between next to adjacent. नेक्स्ट टू एंड एडजेसेंट बोथ आर सेम। Okay, sir. माने अगर ये जो देखो बोथ आर नॉट सेम, बट ये एप्लीकेशन जो है बगल वाला, तो वो ये एप्लीकेशन सेम है, लेकिन उसको नेक्स्ट टू का आप किसी दूसरे एग्जांपल में भी लगा सकते हैं जो एडजेसेंट से अलग हो सकता है उसका मीनिंग। ओके, नाउ बिसाइड। सर बोलते हैं adjacent Yes. side. सर रश्मि इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू राम, टू लग सकता है यहाँ से? नहीं लगाएंगे एडजेसेंट राम। आप नेक्स्ट टू लगा सकते हो, लेकिन एडजेसेंट राम। टू लगाएगा तो मिस्टेक रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, वो एडजेसेंट के बाद एकदम आप वहां पे जिनके बाद है उसका नाम लिखो, एडजेसेंट राम। अब आगे सर आप, मीनिंग सेम है। हाँ मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है। नेक्स्ट टू एंड एडजेसेंट मीनिंग सेम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इवन बिसाइड, Sir, बिसाइड, यस। sir, my neighbor house is my to adjacent to my house. Adjacent my house. My house. My neighbor house is Yes. adjacent to my house. नेबर, हाँ नेबर कोई एक इंसान का नाम होगा तो और अप्रोप्रिएट होगा। नेबर तो मतलब ही है कि आपके अगल बगल में रहता है। सो वहाँ पे Okay. मिस्टर शर्मा, Mr. Sharma's house is adjacent to my adjacent house. me, Adjacent me. और adjacent my house। Adjacent my house. ओके, बिसाइड का यूज भी आप कर सकते हो बगल में बोलने के लिए। Beside. He is Beside, beside to me. is beside me, He is beside me. he is sitting beside Ram, Divya is standing beside Mayank। तो यहाँ भी ये तीनों का जो मीनिंग है, बिसाइड, एडजेसेंट, नेक्स्ट टू, ऑल आर सेम। So beside can also be mentioned here in this case. Adjacent, next to, beside, these are all prepositions. See, English में ना मतलब you have lot of options. आप एक ही सेंटेंस को डिफरेंट prepositions के साथ बोल सकते हो, and you can be more versatile, ताकि थोड़ा सा अलग भी लगे। जैसे I am beside को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन adjacent को कम यूज करते हैं। तो आप लोग एडजेसेंट को यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एडजेसेंट को यूज करते होंगे। जी बिल्कुल। Sir, this is new word. ओके, नहीं हाँ, अब देखो कोई भी चीज मैंने पहली बार सुना है तो वो मेरे लिए नया है, एब्सोल्युटली। Yes, sir. लेकिन अब जो आप सुन लिए ना, आप देखेंगे वही वर्ड आपके आमने सामने घूमता रहेगा, बहुत लोगों को बोलते हुए सुनोगे। Yes, sir. इसका मतलब ये है कि इसके पहले भी बहुत लोग बोलते थे, लेकिन शायद आपके दिमाग में वो था नहीं वर्ड, इसीलिए आपने
कभी सुना नहीं या सुन के भी समझा नहीं, और जरूरत भी नहीं पड़ी सर। कभी जरूरत नहीं पड़ी, या बहुत कुछ हो सकता है। अभी जरूरत पड़ जाएगा। कभी नहीं, बात नोटिस नहीं किया सर। बात है कि अगर हमारे पास ऑप्शंस रहेगा तो हम डिफरेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। हम लोग अगर चिट्ठी में लिख रहे हैं या मेल कर रहे हैं, तो मेल में भी अगर हम लोग ना नॉर्मली बिसाइड, हम लोग सबको पता था बिसाइड, मतलब भी वही है। हाँ, लेकिन एडजेसेंट ये सब ये और बेटर वर्ड है और फॉर्मल वर्ड है। आप मेल लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, वहां पे एडजेसेंट दोगे ना तो वो और ज्यादा बेटर होगा, वो इम्प्रेस हो जाएगा। सही बात है। हाँ, तो वही एब्सोल्युटली यार, ऑप्शंस रहेगा यहाँ पे। देखो बाय, हाँ सर एडजेसेंट मीनिंग जुड़ा हुआ भी होगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। जुड़ा हुआ इज अ टोटली डिफरेंट। ओके, जुड़ा हुआ नहीं, बगल में। इवन आप बाई को भी बगल में यूज कर सकते हो। सर एडजेसेंट साइड और बिसाइड में डिफरेंस थोड़ा सा बताइए मुझे। एडजेसेंट साइड एंड बिसाइड दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों यूज कर सकते हैं। आप दोनों यूज कर सकते हैं। जहां पे बिसाइड यूज कर रहे थे वहां पे आप एडजेसेंट को यूज कीजिए, कुछ अलग कीजिए। साइड हम बोलते हैं ना सर। आप पहले बात है कि आप बोलना क्या चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम स्टैंडिंग बिसाइड राम, आप बोलना चाहते हो मैं राम के बगल में खड़ी हूँ। आई एम स्टैंडिंग बिसाइड राम, तो वहां पे बिसाइड को हटा दो, वहां पे एडजेसेंट लगा दो। आई एम स्टैंडिंग एडजेसेंट राम, मीनिंग सेम है। अगर आप बोलना चाहते हो मेरा घर, यस सर ही इज बाय राम नहीं होता है तो सर मैंने स्टैंडिंग बाय राम। मैंने कब बोला ही इज बाय मी? ही इज सिटिंग बाय राम, और राम के बगल में है। ही इज सिटिंग बाय राम। ओके सर। मसूद इज स्टैंडिंग बाय तरुण। तो बाई को हम लोग सोचो, बाई का हम लोग मीनिंग क्या जानते थे? किसी के द्वारा, बाई राम, राइट। यहाँ पे बगल में भी आप बाई को यूज कर सकते हो। ही इज सिटिंग बाय राम, मसूद इज सिटिंग बाय तरुण। इसका मतलब ये नहीं कि तरुण मसूद को बैठा रहा है ना, या खड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है। इस बगल में यू कैन यूज बाई ऑल्सो। जब आप यूज करोगे डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजिशंस, आपकी इंग्लिश और बेहतर होगी। सर ये तो लग रहा है ही इज सिटिंग बाय राम, राम द्वारा बैठ रहा है वो। हाँ, लेकिन वो मीनिंग नहीं है। यहाँ राम के बगल में वो बैठा हुआ है, वही बता रहा है। देखो, एक बाई होता है, जिस बाई के बारे में हमने इससे पहले दूसरे लेसन्स में पढ़ा था, वो बाई का मतलब अलग है। अभी जो बाई हम लोग कर रहे हैं, ये बाई का मतलब अलग है। बाई के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ये एक अलग एप्लीकेशन। इसका मतलब नहीं कि बाई को आप दूसरे जगह यूज नहीं कर सकते। हम लोग अभी बगल में को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप बाई को भी यूज कर सकते हैं। So means it depends on the sentence, और हम कैसे बोलते हैं, कैसे using. Right. We are talking about application. यहाँ पे बगल में, कोई चीज के बगल में आप बोलना चाहते हो, you can use by. Okay, I think till now it is clear. Yes. Fine. Okay. Okay, अब देखिए, there are two words, ahead of and behind. Ahead of मतलब आगे, behind मतलब पीछे। अब आगे का मतलब, इससे पहले हम लोग इन फ्रंट भी बोले थे, लेकिन ये अभी हम लोग ahead of and behind की बात कर रहे हैं। आयांश is standing ahead of अविरत। आयांश जो है वो अविरत के आगे खड़ा हुआ है। ahead, ahead of, he is standing ahead of me, वो मेरे आगे खड़ा हुआ है। हम लोग एक लाइन में है, वो मेरे आगे है। So Ayansh is standing ahead of Avirat. उसी का अगर मेरे पीछे कोई खड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ अविरत is standing behind Ayansh. He is standing behind me.
अहेड ऑफ मतलब आगे खड़ा हुआ है, एक लाइन में आप हो वहां पे आप अहेड बोल सकते हो। अहेड ऑफ मतलब आगे, बिहाइंड मतलब पीछे। ओके सर ओके। इस शब्द को हम जो है एक लाइन के अकॉर्डिंग बोलेंगे, आगे या पीछे खड़ा है, हाँ या मैं मतलब बोल जब सकता हूँ इसको, मैं उससे आगे हूँ। हाँ तो मैं उससे आगे हूं तो आई एम अहेड हिम, आई एम जी जी अच्छा जी। स्टैंडिंग अहेड ऑफ राम, मतलब मैं राम के आगे खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड राम, मतलब मैं राम के पीछे खड़ा हूं। ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं अगर हम लोग एक लाइन में है, क्यू में है, एक लाइन में है, तो वहां पे हम लोग अहेड ऑफ या बिहाइंड हम लोग बोल सकते हैं। सर अगर आई नॉलेज के वे में बोले एम कि वह ऑफ लगाना उससे नेसेसरी आगे है है। उसके साथ में। एक मिनट, वन बाय वन। या मंजिला, यू आर टेलिंग समथिंग? ये सर अहेड के जैसे आई एम स्टैंडिंग अहेड राम, तो बीच में ऑफ जैसे अहेड के साथ ऑफ है वो लगाना जरूरी है। हाँ हाँ, वो लगाना जरूरत है। वो अहेड राम नहीं होता, अहेड ऑफ राम। पूरा ओके फ्रेज। अहेड ऑफ ये एक प्रपोजिशन है, अहेड ऑफ। आप उसको अहेड ओके करके नाम नहीं लिख सकते, अहेड ऑफ इज द प्रपोजिशन। ओके सर आई अब वुड डे अहेड ये अलग है, अहेड एंड अहेड ऑफ। ahead of is a one preposition, ahead of। ओके ahead एक अलग वर्ड है, अच्छा। ahead of is a preposition। Sir, yes, can I use beyond in place of behind? again repeat। Can I use beyond in place of behind? ये वो आपका वो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। बिहाइंड के जगह क्या? Beyond, B E Y E beyond O N, beyond. beyond बियॉन्ड तो अलग है सर। beyond is Beyond. different, वो beyond तो is अलग है। different। we will talk about beyond, हम लोग beyond को लेके बात करेंगे। beyond टोटली अलग वर्ड है, से परे होता है। beyond अलग वर्ड है, behind है मेरे पीछे। beyond is totally a different word, huh? Okay, Sir, yes, you used sitting by and standing by. So these are phrasal verbs. phrasal verb क्या होता है? वहां पे prepositions होते हैं। Okay. Absolutely, वो phrasal है और वो preposition भी है। Okay, in front of या before। in front of मतलब के सामने, और before मतलब भी है सामने। सेंटेंस देखेंगे हम लोग। in front of मतलब face to face। he is standing in front of Ram, एकदम face to face, in front। यहाँ पे भी before में भी face to face होगा, he is standing before of Ram, he is standing before of Ram। सर बिफोर के बाद ऑफ भी आएगा इधर। he is standing before Ram, he is standing before of Ram। यहाँ पे Because we ऑफ, did this before earlier also, before हाँ के पहले। हाँ, यहाँ पे ऑफ हम लोग नहीं लगाएंगे because this is absolutely clear, he is standing before Ram। तो ये यहाँ पे भी आप face to face लिख सकते हो। in both the conditions both are face to face। यहाँ पे face to face अगर कोई है, आप in front लगा सकते हो या before, दोनों लगा सकते हो। he is standing before Ram। okay, we'll go to the next। in front of and ahead of। in front of हम लोग ने in front of को देखा है, ahead of यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, in front of and ahead of। teacher is sitting in front of the students, teacher is sitting in front of the students। Rashmi is sitting ahead of Divya,
अहेड मतलब आगे, हम लोग ने अहेड को देखा है, अहेड ऑफ मतलब मेरे आगे। रश्मि इज सिटिंग अहेड ऑफ दिव्या। तो इन फ्रंट ऑफ और अहेड में डिफरेंस है। इन फ्रंट मतलब एकदम सामने सामने। इन फ्रंट का मतलब सर आपने फेस टू फेस जो सामने होगा, हाँ, और राइट, वो मतलब एक के पीछे एक बैठे हैं, वो हुआ अहेड। यस, अहेड एंड बिहाइंड। ओके, अहेड ऑफ एंड बिहाइंड। यस, टिल नाउ वी हैव डन। एक बार मैं पीछे से एक बार आता हूँ लास्ट में। हमने आज स्टार्ट किया ऑफ के साथ, देन वी टॉक अबाउट, then we talked about ago, then we talked about inside and outside, then we talked about within, then we talked about without, then we talked about after, then we talked about before, then we talked about before come जो in front and before हम लोग दोनों लगा सकते हैं। फिर next to मतलब बगल में, adjacent का मतलब भी है बगल में, इवन beside का मतलब भी है बगल में, एंड by का भी मतलब है behind में। मतलब यहाँ पे by का बहुत सारा मीनिंग होगा, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में by का मतलब है बगल में। तो हम लोग नॉर्मली by, adjacent ये सब कम लगाते हैं, तो यू कैन यूज दैट नाउ। ahead of and behind में हम लोग ने देखा, कोई मेरे सामने है तो कोई मेरे पीछे है। इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया कि कोई चीज फेस टू फेस है। ahead of and in front of. Okay. Yes. So today we talked about approx 15 different prepositions. Okay. Now we have very less time. हमारे पास 30 minutes time है। मैं सबको तो opportunity नहीं दे सकता, लेकिन जो लोग जल्दी जल्दी रेडी होंगे मैं उनको opportunity जरूर दूंगा। So मैं एक टॉपिक दे रहा हूं आपको। This is the topic. Any love story. आपको you have to create a love story. आपको एक love story के बारे में बोलना है। Maximum 2 मिनट तक बोलना है। 2 minutes you have to speak about any love story. ठीक है? You can speak for 2 minutes. Maximum 2 मिनट से ज्यादा आप नहीं बोलोगे। And you have to use all the preposition, जो भी preposition आज हमने यूज किया, वो सारे prepositions को आप यूज करोगे। You will use all the preposition which you have done. मैं सबको मौका नहीं दे पाऊंगा, कुछ लोग आज बोलेंगे, तो कुछ लोग जो नए हैं वो लोग सुन सकते हो जब सामने वाला बोलेगा, और बाकी लोग मुझे मोबाइल में या तो रिकॉर्डिंग करके देंगे या तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे, लेकिन आपको भेजना है। अगर आप सीरियस हो इस क्लास को लेके, वोकैबुलरी क्लास को लेके, देन आप यूज नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे। तो गाइस आपको 5 मिनट का समय देता हूं। 5 minutes you have to prepare your talk. Please do it. ग्रामेटिकली मत देखना, गलत हो जो हो बस यूज करना है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है? और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छा बोलोगे या बहुत अच्छा लिखोगे। आप लिखोगे, आप बोलोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। कितना अच्छा कितना बुरा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम लोग क्या कोई ग्रामेटिकल यहाँ पे इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, आपको बस बोलना है। सो योर 5 minutes हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो मैं यहाँ से निकल जाऊं इस स्लाइड से। यस, मैं देखता हूँ कौन पहले रेडी होता है। हमारे पास समय है, आई थिंक एटलीस्ट 5-6 जन तो जरूर बोल पाएंगे। आई थिंक अर्चना कुमारी इज ऑलरेडी रेडी। रेडी अर्चना? No, sir, I will send a video. अच्छा, यू विल सेंड द वीडियो? Yes, sir. देखो, वीडियो करने से फायदा ये है कि आप उसको लेके थोड़ा टाइम दे पाओगे, बना पाओगे, जल्दी Yes, जल्दी sir. में नहीं होगा।
तो अच्छे से मैं आप सर इसमें होता क्या है कि अगर मैं यहाँ बोल देती हूँ तो मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ कि मैं कल वीडियो भेजूं, फिर मुझे होता है कि मैं बोल तो दी ही हूँ तो फिर वीडियो क्यों भेजूं। सो आई विल सेंड अ वीडियो। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से बना के एकदम एक्सक्यूज मी सर, Yes. एक लाइन में 2 prepositions यूज हो सकती है ना या नहीं? डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस अगर आप बोलोगे तो मैं बता पाऊंगा, बट हो चलो सकता है, करके देखती हूँ, मेरा हो सकता है, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। हो सकता है, हो सकता है। यू डोंट थिंक अबाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक को लेके यहाँ पे कोई मत सोचना प्लीज। ग्रामर को हम लोग यहाँ पे सबसे लास्ट में बात करेंगे। हमको बोलना है, वी हैव टू यूज, वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू यूज द वर्ड्स, वी हैव टू क्रिएट अ स्टोरी। ये सब चीजें दिमाग में रखो, ठीक है। सो प्रेफरेबली अगर आप टाइम दे के इसको बनाओगे तो बेटर बना पाओगे। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे हैं मैं बाद में करूंगा, लेकिन बाद सोचते सोचते अगला मंडे आ जाएगा, फिर वो बाद आएगा नहीं। बट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज बी सीरियस अबाउट द क्लास, क्योंकि मैं वोकैबलरी क्लास नॉर्मली मैं सबको अपॉर्चुनिटी नहीं देता हूँ। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि आई एम गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन राइट नाउ, क्योंकि जो लोग इंग्लिश में थोड़े से वीक है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है वोकैबलरी क्लास में प्रेजेंट May I करना। speak, sir? हु इज देयर, व्हाट्स योर नेम? Asma. Asma. ओ आसमा, यू आर रेडी? Yeah. या आसमा, यू Most कैन probably. स्पीक, यू कैन स्पीक। Okay, so here I'm going to talk about love story of Heer and Ranjha. Okay. Okay, Ranjha lives adjacent to Heer. He was after her. Once both were standing in a queue. Heer was ahead to Ranjha and Raja was behind the Heer. And Ranjha proposed her and he forgot that her brother was standing by him. Is this correct? अरे मजा आ रहा है, आप करेक्ट फिर इनकरेक्ट। जब आप व्हेन यू फोकस ऑन स्पीकिंग करेक्ट वरेक्ट किसी से पूछना मत। मेरे से तो गलती से पूछ लिया, किसी दूसरे को कभी मत पूछना। जो मैंने बोला वो सही है ना, क्योंकि सामने वाला आपको हमेशा बोलेगा आप गलत हो। पूछना ही नहीं है। यू आर प्रैक्टिसिंग, और गलत सही कुछ नहीं है यहाँ पे। यू स्पीक व्हाट यू फील राइट। Okay. So he forgot that her brother was standing by him, and Ranjha ran away from there, and her brother was behind him to catch him and to beat him. But finally, he accepted his proposal, and both are living happily. वेरी गुड, वेरी, एटलीस्ट यू ट्राइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, वेरी नाइस, Thank you. very good. Oh, yeah, is there anyone who would like to speak? Don't think about grammar, huh? Just speak. Just agar if anybody wants to speak, please chat box में अपना नाम, you Hello, write sir. you write your name and I'll give you the opportunity. Yeah, Shamul Mondal, Yes, sir. you want to speak? Yes, sir. Wow, very good. Itna fast. Can I speak? Yeah, you can. Can I Tell me. speak, sir? Yes, go ahead. Okay, sir. Thank you, sir. I am speaking about a love story which is happened in my neighbor adjacent building, which is happened 2 years ago. Debu and Shoma, the two young couple, young man, Debu love Shoma, who is live adjacent building of Debu, but Debu think that he speak to Soma that he love Soma, but when he come to when he come in front of the Soma, he totally confused and disappointed that
he loved Soma. Um, um, and after the one month, Soma married to another's people, another's young on another's person, and Debu totally upset and sorry sir. आप तो इतना सर शर्मा रहे हो जैसे आप अपना ही स्टोरी बोल रहे हो. नहीं सर, मैंने ठीक ठाक ये नहीं कर पाया. It's okay, fine. आप इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आराम से बनाना, आराम से बना के, मतलब जो लोग नए हैं, see there are some people who are new, थोड़ा सा उसको आराम से बनाओ ताकि you can get time to speak. थोड़ा prepared होगे तो better बोल पाओगे. On the spot बोलोगे तो थोड़ा इधर उधर होगा. तो इसीलिए you prepare yourself and send your audio and video whatever you are convenient. आप मेरे को WhatsApp में privately भेजना. You know my WhatsApp number, you send it, I will evaluate. मैं आपका सुनूंगा और मैं आपको evaluate करूंगा. सर आपका जो WhatsApp नंबर है वो Krishna and Radha. Many years ago, Krishna of Gokul and Radha from Barsana. They both love each other inside the heart, but they didn't tell each other. After some time, at the festival of Holi, Radha and Krishna playing Holi with friends, and suddenly Krishna come in the they come in front of each other, and Krishna put some color on Radha's cheek. Radha become very angry and she ran after Krishna. Krishna ran to the Balrams, and she is sister of true brother. She is talking about Sanjeev in front of parents. Brother told that our father had come after 2 days. Then I give you final decision. She told that I cannot live without Sanjeev. Her mother was adjacent Genia. Genia family ready for their marriage. After convincing of Sanjeev and Genia, they lived together happily. Very good, very nice. अच्छा था, थोड़ा छोटा था, but it was good. Very nice. But the sentences were correct. Inside a theater, Manish was sitting adjacent Aarti. Aarti bought popcorns for the refreshment inside the theater and kept beside her chair. And once the lights were off, she started eating popcorn. But she found Manish's hand, who was sitting by her. So she yelled at him, and after lights were on, she realized that her popcorns were lying next to her on the right side. So that's how their love story began. With a girl a year ago who was speaking always about me. She preferred to stay inside of home always. She always telling I am nothing without you, and she fixed in her mind that without me her world is nothing. Her home is next to my home. When she is coming to in front of me, feeling safe, she follows me after first meet. Now her family is staying beside of my home. Now we are. One evening, sir, the speak is any love story. Basically, stories are who is never believed on such love and some kind of feelings, with this kind of feelings before a few years ago. She was so studious and focused only about her studies. But suddenly she met a boy who was her batchmate, even though that boy was living adjacent her house, but she never noticed him. One morning, after the tuition was over, it was raining heavily, and somehow she forgot to bring her umbrella, and thus standing before the bus. Atul. She had a crush on Atul's friend Saurav. Atul knew about this. 2 years ago, Saurav came in her town. He was Atul's classmate. One day she was inside the library and she saw Saurav there. She fell in love with him at the first sight. Which chapter she could finish within half an hour,
She took 2 or 3 hours for that. She started thinking of him all the time. She found Saurav also was taking interest in her. Are inside the classroom. There are lots of new students whom I don't see earlier. A boy was sitting behind me and I was sitting ahead of him. Within 1 hour, I completed all mathematics which was known to me. But I have some doubts. On that time, the teacher went outside the classroom. After, without any hesitation, I asked the boy who was sitting behind me and I asked about some mathematics doubt. Then he helped me. I was attracted by his handwriting. On that time, eye contact happened between us, and I think on that time we exchanged our heart. It was like his heart was adjacent my heart. By this, we exchange our phone numbers after exam, and from 7 years we are in a relationship. Though we have lots of breakup and patch up. College, he was sitting adjacent me. We talked about college admission and courses. Then we left. Then I saw him besides our home. He is shifting next to my home. After some time, we go to college together. Within few weeks, I know I can't live without him.